Hello students, let's complete the topic that we have started a few lectures back. Since this topic was a bit lengthy, we have almost taken 3 or 4 lectures to understand that. Okay, once we finish with this topic children, then we'll be solving the exercise and we'll move ahead with other topics from our textbooks. Okay, last lecture children, where I ended it, I told you how Joe, who was actually visiting Laurie, and Laurie told her that she has got lots of books and she can come over to read them, and grandfather is not at home, so you need not worry. और फिर जो ने उसको रिप्लाई किया था कि लाइक ओ डोंट टेल मी अबाउट ग्रैंडफादर एंड ऑल, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. And she just tossed her head. She took it very casually. She just wanted to say that there is nothing in this world which I am afraid of. अच्छा, अभी लॉरी उसको थोड़ा टॉन्ट करता है बच्चों. आई डोंट बिलीव यू आर, बोले कि मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि तू तो थोड़ी डरी हुई है. एंड दैट बॉय एक्सक्लेम्ड इट. ही जस्ट वांटेड टू टॉन्ट हर, माइट बी. अच्छा, एंड ही वाज ऑलवेज लुकिंग एट दैट गर्ल विद अ लॉट ऑफ एडमिरेशन. He always admired her. Acha, and he always thought that there would be some proper good reason to be trifle afraid of the old gentleman. Children, they have used a word here that's known as trifle. Trifle is a bit, little. मतलब वो जो उसका ग्रैंडफादर था उसको डरने के लिए कोई ना कोई छोटी वजह तो थी. And if she met him in some of his moods, मतलब उसका अपीयरेंस ही ऐसे था जैसे कि कोई रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर वगैरह जैसे होता है ना बच्चों, या फिर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर. हाँ, तो आपको उसको देख के थोड़ा ना थोड़ा तो डरना ही पड़ेगा. नाउ द एटमॉस्फेयर ऑफ द होल हाउस बीइंग समर लाइक, लॉरी लेड द वे फ्रॉम रूम टू रूम. अभी ग्रैंडफादर घर पे नहीं है, घर पे उसके नए मेहमान नहीं है, उसकी दोस्त आई है, तो एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे तक लॉरी उसको पूरा का पूरा घर दिखा रहा था. And letting Joe stop to examine whatever struck her fancy. ये सब रूम्स को ऑब्जर्व करते वक्त चिल्ड्रन, जब भी जो को लगता था कि लाइक कोई फैंसी चीज है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए लॉरी उसको वहां पे वेट भी करा रहा था. अच्छा, एट द लास्ट चिल्ड्रन दे केम टू द लाइब्रेरी. जैसे वो लोग लाइब्रेरी में आए तो शी जस्ट क्लैप्ड हर हैंड्स एंड शी pranced. Prance is like, for example children, you jump up with joy, as she always did when especially delighted. और जब भी वो खुश होती थी she used to behave in this particular way. उसने इतने सारे बुक्स देखे थे, there was so much of line with books ना, and there was those pictures and statues. अच्छा, there were little cabinets which are cupboards full of coins and curiosities, and a very nice word children they have used here, that's hollow chairs. hollow chairs का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, यहाँ पे chairs है but there is no one, like you know those arm chairs होते हैं. hollow word use करने के पीछे और एक reason होता है कि like there was no one sitting on that. and then there was those queer looking tables. queer word children means strange, अजीब दिखने वाले tables थे. अच्छा, bronze था वहाँ पे. अच्छा, एक बहुत बड़ा सा open fireplace था जहाँ पे आग जल रही थी, with those quaint tiles that we can have ना. okay, now What richness. बच्चों ये घर को देखने के बाद ऑब्वियसली जो के मुंह से तो एक ही वर्ड निकलेगा कि लाइक वाओ, मतलब क्या घर है करके. She sighed and sinking into the depth of a velour chair and gazing about her with an air of intense satisfaction. एक चेयर के ऊपर बैठ के वो एक जो नजारा एंजॉय कर रही थी बच्चों लोग, that was beyond her description. Theodore Lawrence, you ought to be the happiest boy in the world, she added impressively. वो लॉरी को देख के बोलती कि लाइक लॉरी, तुमको तो दुनिया का सबसे खुश लड़का होना चाहिए था, क्योंकि ये जो ऐशो आराम मिलता है सबके नसीब में नहीं होता. Everyone doesn't get all this richness like you know splendors. लेकिन फिर लॉरी का जो रिप्लाई था बच्चों लोग, वो आपको क्वेश्चन मार्क में डालता है कि लाइक अ फेलो कांट लिव ऑन बुक्स अलोन. बोले क्या रे, सिर्फ बुक्स के सहारे कोई जिंदा रहता है क्या, said Laurie. And like you know he was he perched on the table on the opposite side. ये लड़की चेयर पे बैठी है, सामने जो टेबल था उस पे perch is to sit. And before he could say anything else, और वो कुछ बोलने से पहले ही
बेल बज गई, डोर बेल, एंड जो फ्लू अप exclaiming with alarm, mercy me, it's your grandpa, ए भगवान मुझे बचाना, मुझे लगता है कि तुम्हारे grandpa आ गए. And she exclaimed it in such a like so much of shock and surprise कि like अभी यहाँ पे मजा आ रहा था. थोड़ी देर पहले इसने डायलॉग मारा था कि like, I am not afraid of anything. अभी जैसे डोरबेल बजा तो इसको लगता है कि like इसके grandpa आ गए, and the amount of fear that she has was beyond imagination. Well, what if it is you're not afraid of anything, na? Returned the boy, looking wicked. Wicked is like, for example, अभी she is in a bad position और ये उसका मजाक उड़ा रहा है. It looks a little wicked. ये बोले क्या, अरे तुमको क्या है ग्रैंडपा आ रहे तो, क्योंकि तुमने अभी तो बोला था कि like I'm not afraid of anything. अच्छा, तो जो ने क्लैरिफाई किया, I think I am a little bit afraid of him. मुझे लगता है कि मैं थोड़ा डरती हूँ उससे. But I don't know why should I be. लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि लाइक मुझे क्यों डरना चाहिए उससे. इन द सेंस कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो आता भी है तो हाँ आने दो उसको, क्या फर्क पड़ता है. एंड जो वॉज ट्राइंग टू कंपोज हरसेल्फ, शी वॉज कंपोजिंग हरसेल्फ दो शी केप्ट हर आईज ऑन द डोर. अभी वो कितना भी खुद को कंसोल करे लेकिन उसकी आंखें तो किस पे टिकी हुई थी, दरवाजे पे. क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद ग्रैंडपा वहां से एंट्री मारेगा. और उसके आगे क्या सीन क्रिएट होने वाला था, शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट. अच्छा, आई एम अ ग्रेट डील बेटर फॉर इट एंड एवर सो मच ऑब्लाइज. आई एम ओनली अफ्रेड यू आर वेरी टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू मी. इट वॉज सो प्लेजेंट. बोले कि मुझे नहीं लगता है मैं उससे डरने वाली हूँ. अच्छा, और थोड़ा डरते तो भी माइट बी आउट ऑफ रिस्पेक्ट. हाँ, एक्चुअली मैं तुमसे बात कर करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ. इट वॉज सो प्लेजेंट, अच्छा लगा तुमसे बात करके. आई कुडंट बेयर टू स्टॉप, सेड लॉरी ग्रेटफुली. और ऑलमोस्ट लाइक see what actually happens is that कि like ये भी जो सेंटेंस दिया है वो तो लॉरी ने बोला हुआ है. वो बोले कि like तुमसे बात कर करके मैं थक चुका हूँ इन द सेंस कि like लेकिन मैं तुमसे को स्टॉप भी नहीं कर सकता था. एंड ही वाज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि like लड़की आई थी उसको थोड़ा सा माइट बी जॉली फील कराने के लिए. द डॉक्टर टू सी यू सर एंड द मेड beckoned as she spoke. और एक फिर नौकरानी आई वहां पे उनके कमरे में, बोले कि लाइक सर डॉक्टर आपको मिलने के लिए आएगी. और मुझे लगता है ये डायलॉग सुनने के बाद में फिर जो ने साय ऑफ रिलीफ दिया रहेगा कि कम से कम वो बूढ़ा आदमी नहीं आया करके. अच्छा, अभी लॉरी ने क्या बोला, वुड यू माइंड इफ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट. अगर कुछ टाइम के लिए मैं तुमको अकेले छोड़ के जाऊँ तो चलेगा. सपोज आई मस्ट सी हिम, क्योंकि उसको कोल्ड थ्रोट हुआ था ना, सर्दी हुई थी, तो डॉक्टर उसको देखने के लिए आया था. डोंट माइंड मी, आई एम हैप्पी एज अ क्रिकेट हियर, आंसर्ड जो. तो बोले कि बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, यहाँ पे मैं एकदम भी ज्यादा खुश फील कर, आई एम फीलिंग हैप्पी एज अ क्रिकेट. दैट्स अ सिमिली. क्रिकेट इज दैट इंसेक्ट व्हिच सिंग्स आउट ऑफ हैप्पीनेस. अच्छा, फिर लॉरी वहां से चला गया था बच्चे लोग. और ये जो थी वो खुद को अम्यूज कर रही थी ना विद डिफरेंट वेज. अच्छा, शी वाज स्टैंडिंग बिफोर अ फाइन पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन. उनके घर पे बच्चे लोग वो जो बूढ़ा आदमी था उसका एक बहुत बड़ा ऐसा पेंटिंग लगाया हुआ था. When the door opened again and without turning, she said decidedly, I'm sure now that I shouldn't be afraid of him. मुझे लगता है कि मुझे इस आदमी से डरना नहीं चाहिए. Because he has got those kind eyes. आंखें तो इसकी एकदम kind दिखाई दे रही है. अच्छा, his mouth may be a little grim, that is serious, but he looks as if he had a tremendous will of his own. मतलब मुझे लगता है कि लाइक ये आदमी के अंदर बहुत ज्यादा विल पावर रहेगा. अच्छा, ये दिखने में मेरे ग्रैंडफादर की जितना तो हैंडसम नहीं है. ही डजंट सीम टू बी एज हैंडसम एज माय ग्रैंडफादर, बट आई लाइक हिम. लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा लगता है मुझे करके. ओके. और सडनली फॉर एग्जाम्पल ये लड़की, अभी ये पिक्चराइज कर सकते हो आप, ये लड़की वो पोर्ट्रेट की तरफ देख के सब डायलॉग मारती जा रहे, बोलते जा रहे जोर से. और सडनली पीछे से एक डायलॉग आता है बच्चों लोग. और डायलॉग क्या था, थैंक यू मैम, said a gruff voice behind her, and there to her great dismay stood old Mr. Lawrence. उसने जैसे ही पीछे पलट के देखा कि किसने थैंक यू मैम करके बोला एकदम सीरियस वॉइस में, और फिर उसने देखा ये बाजू में जैसे पेंटिंग था यहाँ पे हट्टा-कट्टा आदमी सामने खड़ा था और ये उसके बारे में बोलती जा रही थी. Now poor Joe blushed till she couldn't blush any redder. Blush is like for example to show that you are very happy ना. लेकिन मुझे लगता है इस आदमी के सामने तुम दिखा नहीं सकते थे कि तुम खुश हो करके.
and her heart began to beat uncomfortably as fast as she thought she had said. मतलब उसके दिल की धड़कन बच्चों इतनी बढ़ गई थी ना कि बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी. अच्छा, सडनली इसके मन में एक डिजायर आया बच्चों लोग, क्या? दैट शी शुड रन अवे, बट दैट वाज कावर्डली. मतलब भाग जाना बच्चों लोग, वो तो कैसे कावर्डनेस होता है ना. एंड अदर गर्ल्स वुड लाफ एट हर, एंड सो शी रिजॉल्व टू स्टे एंड गेट आउट ऑफ दिस स्क्रैप एज शी कुड. तो उसने अभी डिसाइड किया कि नहीं, भागूंगी नहीं, मैं इधर ही रुकती हूँ, देखते कि ये सबसे कैसे बाहर निकलते. एंड अ सेकेंड लुक शोड हर दैट द लिविंग आईज अंडर द बुशी आईब्रोज वर काइंडर इवन देन द पेंटेड वंस. उसने उस आदमी को ऑब्जर्व किया, बोलते कि उसकी आंखों को जैसे उसने ऑब्जर्व किया तो पेंटिंग में जितने उसके आईज काइंड दिख रहे थे ना, उससे ज्यादा ये आदमी काइंड लग रहा था उसको. एंड देयर वाज अ स्लाइट ट्विंकल इन देम, देयर वाज अ बिट ऑफ स्माइल which lessened her fear a good deal. तो भी चलो उसको ऑब्जर्व करने के बाद might be her fear was reduced a little. अच्छा, उसका वॉइस जो ग्रफ था वो ज्यादा ग्रफ होते जा रहा था. And that old gentleman said abruptly after the dreadful pause. थोड़ा शांत रहने के बाद उस आदमी ने अपना मुंह खोला. क्या बोलता है देखो बच्चों लोगों, so you're not afraid of me, hey. तो जो ने क्या रिप्लाई किया, not much sir. And you don't like think I am as handsome as your grandfather. तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के जितना हैंडसम नहीं हूँ. अब ये डर गई क्योंकि उसने पूरा सुन लिया था विजय से इसने क्या बोला था. तो ये बोलते कि नो, might be not quite sir. लाइक नहीं, मेरे ग्रैंडपा के जितने तुम हैंडसम नहीं हो. एंड आई गॉट अ ट्रेमेंडस विल, हैव आई. मेरे अंदर बहुत ज्यादा विल पावर है. लेकिन हाँ, आई ओनली सेड आई थॉट सो. हाँ, मैंने बोला, मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर विल पावर है करके. बट यू लाइक मी इन स्पाइट ऑफ इट. और सबके बावजूद भी तुम मुझे पसंद करती हो. यस आई डू सर. एंड द आंसर प्लीज द ओल्ड मैन. ही गेव अ शॉर्ट लाफ, shook hands with her. उसके साथ में उसने हैंड शेक किए थे. putting his finger under her chin, it's like to hold. आपका हाथ वो बच्चे के चिन के सामने डाला था उसने और चिन के नीचे. turned up her face, examined it gravely and let it go, saying with a nod, got your grandfather's spirit. तुम तुम्हारे ग्रैंडफादर के जैसी हो. if you haven't his face, he was a fine man my dear. But what is better, he was a brave and an honest one, and I was so proud to be his friend. अभी सडनली भी चलो बीच में किसका डिस्क्रिप्शन आ गया, जो कि ग्रैंडफादर का. ये बोलते कि तुम दिखने में उसके जैसी दिखते हो और तुमको पता है तुम्हारे ग्रैंडफा मतलब बहुत ज्यादा ब्रेव थे और बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थे, और मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं उनका दोस्त हूं या फिर वो मेरे दोस्त थे. तो जो ने रिप्लाई किया, थैंक यू सर, एंड जो वॉज क्वाइट कंफर्टेबल आफ्टर दैट, for it suited her exactly, क्योंकि उसको सूट कर रहा था वो. चलो अच्छा, what I have been doing to this boy of mine, hey. बोले कि मेरे लड़के के साथ में क्या कर रही है यहाँ पे करके. was the next question sharply put. only trying to be neighborly sir. कुछ ज्यादा नहीं चलो, या फिर कुछ ज्यादा नहीं ग्रैंडपा, मैं सिर्फ अपना पड़ोसी होने का धर्म निभा रही हूँ. एंड जो टोल्ड how her visit came about, और फिर शायद उसने बताया रहेगा कि वो किससे कैसे उसको मिलने के लिए यहाँ पे आए थे. अच्छा, ग्रैंडफादर ने उसको पूछा, डू यू थिंक ही नीड्स चीयरिंग अप अ बिट, डू यू, तुमको लगता है उसको थोड़ा चीयर अप करने की जरूरत है. तो ऑब्वियसली जो का आंसर तो रेडी रहेगा ना. यस सर, ही सीम्स अ लिटिल लोनली. मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा लोनली फील करता है ना. एंड यंग फोक्स वुड डू हिम गुड परहैप्स. तो थोड़े जवान बच्चों के बीच में रहेगा तो ऑब्वियसली लाइक उसके साथ में अच्छा ही रहेगा. अच्छा, वी आर ओनली गर्ल्स बट वी शुड बी ग्लैड टू हेल्प इफ वी कुड, फॉर वी डोंट फॉरगेट द स्प्लेंडेड क्रिसमस प्रेजेंट यू सेंट अस, सेड जो ईगली. हम लोग तो लड़कियां हैं, हमारी तरफ से जितना उसको हेल्प करने का है उतना हम लोग करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने क्रिसमस के लिए हम लोगों के लिए जो स्प्लेंडेड गिफ्ट्स दिए थे, वी कैन नेवर फॉरगेट देम. टट टट टट, दैट वाज द बॉयज अफेयर, हाउ इज द पुअर वुमन. बोले कि पुअर वुमन, अभी सडनली पुअर वुमन किसकी बात आ गई. डूइंग नाइसली सर, एंड ऑफ वेंट जो टॉकिंग वेरी फास्ट एज शी टोल्ड ऑल अबाउट द हमल्स. हमल यानी बच्चों लोग अ पुअर फैमिली इन हुम हर मदर हैड इंटरेस्टेड रिचर फ्रेंड्स देन दे वर. अच्छा, मार्च फैमिली बच्चों लोग एक फैमिली को हेल्प करता था, उस फैमिली का नाम यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है हमल्स करके. जस्ट अ फादर्स वे ऑफ डूइंग गुड
आई शैल कम एंड सी योर मदर सम फाइन डे, एक दिन आता हूँ मैं तुम्हारी मम्मी को मिलने के लिए, वक्त मिलेगा तो। और उसको बताना, टेल हर सो। देयर इज द टी बेल, वी हैव इट अर्ली ऑन द बॉयज अकाउंट, मतलब लॉरी के लिए हम लोग थोड़ा चाय जल्दी पीते हैं, और फिर अभी चाय की बेल हो गई, चलो नीचे जाके चाय पीते। कम डाउन एंड गो ऑन बीइंग नेबरली, चलो नीचे और पड़ोसी होने का धर्म निभाओ, अभी हमारे साथ में चाय पीना है। एंड इफ यू लाइक टू हैव मी सर, अगर आप चाहते हो तो पक्का मैं आपके साथ आ रही हूँ चाय के लिए। शुडंट आस्क यू इफ आई डिडंट, एंड मिस्टर लॉरेंस ऑफर्ड हर हिज आर्म विथ ओल्ड फैशन कर्टसी, तो उसने उसको हाथ दिया और फिर हाथ में हाथ लेके वो नीचे चाय पीने के लिए गए थे। What would Meg say to this, thought Joe, as she was marched away while her eyes danced with fun as she imagined herself telling the story at home. अब ये सब इमेजिन करने के बाद में सवाल ये आता है कि लाइक जो के मन में क्या आ रहा है कि अभी सब लोग डरते थे किससे, ग्रैंडपा से, एंड दे नेवर इंटरैक्टेड विद देम। सबको लगता था कि लाइक हाँ लॉरी के साथ में थोड़ा सा फ्रेंडशिप करना चाहिए, बट नो वन हैड द डेयरिंग। लेकिन आज ये इम्पॉसिबल चीज, ये इम्पॉसिबल काम किसने कर दिखाया था? जो ने। तो शी जस्ट इमेजिनिंग कि लाइक घर पे जाने के बाद सबको ये जब कहानी बताएगी कि किस तरीके से वो गई थी, किस तरीके से उसने उस लड़के को खुश किया था, अच्छा कैसे एक्सीडेंटली ग्रैंडफादर आ गए थे, and when she will tell all these things to her family members, they would be more than surprised plus excited, and they would feel happy for that Laurie as well as Joe, and for a new friendship which was going to start between these girls and Laurie. So friends, that's the end of the story. We have just stretched it a bit. I'll just recap on the story that we have children, कि ये स्टोरी पढ़ते वक्त कैसे पढ़ने का। स्टार्टिंग में बच्चों आपको पूरा उनके घर का, दोनों घरों का डिस्क्रिप्शन ध्यान रखना है। अच्छा, एक साइड में वो स्टेटली मैंशन, दूसरे साइड में क्या, ब्राउन कलर का घर। अच्छा, लेकिन एक घर के अंदर खुशियां, चिल्लाने वाला आवाज, मम्मी, और दूसरे साइड में सब कुछ शांत। अच्छा, अभी बाजू में वो लड़का कौन, लॉरी। फिर जो जिसको हमेशा लगता था कि लाइक उसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहिए, उससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, और एक बार जब उसने उसको देखा था विंडो में तो शी पर्पसली थ्रू अ स्नोबॉल, और जैसे उसने थ्रो स्नोबॉल फेंका था ऊपर, देन दैट बॉय एंड शी हैड अ डायलॉग, जहां पे इसने उसको खुद ही इनवाइट कराया था ना खुद के घर पे, लाइक व्हाई डोंट यू हैव समवन कम ओवर योर हाउस, यू नो गर्ल्स आर वेरी केयरिंग, दे प्ले नर्स, और फिर उसने उसको इनवाइट किया था। और एक दिन जब उसने ऑब्जर्व किया था कि घर पे ग्रैंडफादर नहीं थे और कोई भी नहीं दिख रहा था, तो शी एंटर्ड हिज हाउस, एंड लॉरी वाज वेरी हैप्पी फॉर दिस यंग फ्रेंड ऑफ हिज whom he had newly met. अच्छा, फिर उनके बीच में जो द नाइस टाइम दैट शी हैड, अच्छा उसने उसका रूम जो अरेंज कराया था, और फिर किस तरीके से लॉरी ने उसको अपना पूरा घर का दर्शन करवाया था। अच्छा, एंड देन सडनली देयर वाज अ डोर बेल, जिस डोर बेल को सुन के कौन डर गई थी, जो, जबकि थोड़ी देर पहले उसने बोला था कि लाइक आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। और जैसे ही वो डोर बेल बजने के बाद एक्चुअली कौन आया था दरवाजे पे, डॉक्टर, क्योंकि इसको कोल्ड हुआ था। अच्छा, एज ही वेंट, फिर वो पोर्ट्रेट को देख के बच्चे लोग ये इमेजिन कर रही थी, फिर शी वाज गोइंग ऑन स्पीकिंग समथिंग, एंड सडनली बैक साइड में कौन खड़े थे, ग्रैंडपा, और फिर ग्रैंडपा और जो का जो डायलॉग दिया था बच्चे लोग, उसमें से फिर ग्रैंडफादर और जो के बीच में जो बॉन्डिंग हुआ था वो भी दिखाई देता है। और मुझे लगता है बच्चे लोग कि लाइक ये जो फ्रेंडशिप था ये आगे जाके और ज्यादा नर्चर होगा, और ये दोनों भी फैमिलीज, गर्ल्स मेग, बेथ, जो और एमी, और ज्यादातर जो, और यहाँ पे कौन था, लॉरी, इनका फ्रेंडशिप हमेशा के लिए मतलब बॉन्डिंग होता रहेगा। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द टॉपिक को नाम दिया गया था बीइंग नेबरली। नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रन वी विल ट्राई टू डिस्कस सम ब्रेनस्टॉर्मिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, ताकि आपको ये चैप्टर और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हम लोगों ने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए, अगर आपको लेक्चर्स में थोड़ा सा ट्रैक रख रहे हो, वी हैड स्टार्टेड विथ सेकेंड चैप्टर ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप। अगर किसी का मिस हुआ रहेगा तो आप वो लिंक देख के वो लेक्चर को भी या फिर वो चैप्टर को भी आप थोड़ा पढ़ सकते हो, और ये जो हमने 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा है चैप्टर, इसको भी आप ठीक से पढ़ना। फिर हम थोड़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन माइट बी इन द कमिंग लेक्चर आई विल टीच यू अ पोएम दैट्स द चेरी ट्री, और फिर उसके बाद में राइटिंग स्किल्स, एंड देन वी ऑल्सो हैव द ड्रामा सेक्शन चिल्ड्रन, history of English drama. So we got a very interesting portions coming up.
और मुझे लगता है कि लाइक ये जो लेंदी लेसन था वैसा और कोई लेंदी लेसन अपने बुक में तो नहीं है, सो 1 or 2 लेक्चर्स विल बी कंप्लीटिंग इट आउट। आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं बच्चे लोग, फील फ्री, क्लासेस से आपको नंबर्स मिलते हैं प्रोफेसर्स के, तो आप कभी भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग एग्जाम के बारे में कुछ बात नहीं करें क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, जैसे वो खत्म होता है तो एग्जाम्स अगर रहेंगे तो हम लोग आपको उसके लिए भी गाइड करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।